Good morning, class 7th. I hope you all are good and please be safe and stay at home. Don't go outside because it's not good to go out. So please be at home and study online and watch our videos on YouTube. We have given whatever the subject you want you want to take interest in. So today we will we will continue with your English literature. All right. So we will read a poem, and the name of the poem is The Field Mouse. What? The Field Mouse, and you have to open page number 37 in your English textbook. And after that, uh, then we will read. And what is the name of the poet is Cecil Francis Alexander. What's the name of the poet is Cecil Francis Alexander. So this is the name of the poet. So now we will continue the poem in your textbook. All right. So continue. So today we will study the poem. First of all, I will read the poem and you have to read also, and you have to read it 2 times at your home. So I'm reading. Where the acorn tumbles down, where the ash tree sheds its berry, with your fur so soft and brown, with your eyes so round and merry. What? Once again, I'll start. Where the acorn tumbles down, where the ash tree sheds its berry, with your fur so soft and brown, with your eyes so round and merry. Scarcely moving the long grass, field mouse, I can see you pass, little thing in what dark den lie you all the winter sleeping, till warm weather comes again. Then once more I see you peeping round about the tall tree roots, nibbling at their fallen fruits. Field mouse, do not go where the farmer stacks his treasure. Find the nut that falls below. Eat the acorn at your pleasure, but you must not steal the grain he has stacked with so much pain. Make your hole where mosses spring underneath the tall oak shadow. Pretty, quiet, harmless thing, play about the sunny meadow. Keep away from corn and house, none will harm you, little mouse. So, this is a beautiful poem by Cecil Francis Alexander, an Anglo-Irish poet and hymn writer of the 19th century. She is the best known for her hymn, All Things Bright and Beautiful, and Christmas carols like There is a Green Hill Far Away and Once in Royal David's City. So all the things, all things bright and beautiful. You have heard that song. That song also written by Cecil Francis Alexander. Okay. So now we will move on to the poem. What is in the poem? Okay. So this poem is about the travels of a little field mouse whose life is in constant danger. ये जो पोयम है वो किसके बारे में है? एक छोटी सी फील्ड माउस है. फील्ड माउस मीन्स जो खेतों में मोस्टली रहती है. ठीक है. चूहा जिसे हम बोले, खेतों वाला जो चूहा होता है वो जो रहता है उसके बारे में है. हुज लाइफ इज इन कॉन्स्टेंट डेंजर. जो उसकी लाइफ है वो हमेशा किसमें रहती है? खतरे में रहती है. एज इट इज ऑफन किल्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टीलिंग ग्रेन फ्रॉम ग्रेनरीज. कभी कभी क्या होता है, क्यों खतरे में रहती है? क्योंकि जब जो
जो फील्ड माउस हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो फार्मर्स होते हैं उनकी ग्रेनरीज में चले जाते हैं और उनका जो ग्रेन वगैरह है उसको स्टील करने की कोशिश करते हैं। मीन्स दे try to steal grain from their granaries, whatever they stored in their storeroom or anywhere. Okay, so what the poet describes the field mouse and then gives it advice about how to be safe. So what poet describes that how would be the safest place for you and how could you save, okay, how could you to be safe. So in the first stanza what the poet watches कि जो first stanza है उसमें जो poet है वो क्या देखता है, जो field mouse है वो एक पेड़ के नीचे है, ठीक है, वॉट एवर, बट वॉट इज रिटन इन द पोएम वेयर द अकॉन टम्बल्स डाउन, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। देयर आर सो मेनी माउसेस देयर, 4 or 5 माउसेस आर देयर इन दिस पिक्चर। सो व्हाट वेयर द अकॉन टम्बल्स डाउन, तो वहाँ पे क्या होता है, एक अकॉन नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ आता है, रोलिंग डाउन करता हुआ आता है। अकॉन क्या होता है, ओक ट्री, आपने सुना होगा ओक ट्री, उसका फ्रूट होता है, ठीक है, जो उसका फ्रूट होता है उसे हम बोलते हैं अकॉन। तो अकॉन नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ गोल गोल करते हुए वहाँ पे आता है। वेयर द एश ट्री शेड्स इट्स बेरी, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे एश ट्री की क्या पड़ी होती है, बेरीज पड़ी होती हैं, जो उसका फ्रूट होता है एश ट्री का। एश ट्री एक पेड़ होता है जो मोस्टली अमेरिका साइड में पाया जाता है, ठीक है, अमेरिका मीन्स साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका साइड में मोस्टली दैट काइंड ऑफ ट्रीज वी कैन सी, so it's a kind of tree, okay, ash tree. So where the ash tree sheds its berry, कि जहाँ पर ash tree अपनी berries जहाँ पे गिरी हुई है वहीं पर एक फ्रूट ऑफ ओक ट्री आता है वहाँ पे। विद योर फर सो सॉफ्ट एंड ब्राउन, जो उसके फर हैं किसके, चूहे के, सॉफ्ट है, काफी मुलायम है और ब्राउन है, भूरे हैं। विद योर आईज सो राउंड एंड मैरी, और जो उनकी आंखें हैं वो गोल गोल हैं, और मैरी मीन्स हमेशा ऐसा लगता है कि खुश हैं, ठीक है। स्कैर्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रास, और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, रेयरली जो लंबी लंबी घास होती है उसमें से जाते हुए दिखाई देते हैं। फील्ड माउस आई कैन सी यू पास, तो जब वो वहाँ से पास होते हैं मीन्स वहाँ से गुजरते हैं तो वो उनको देख लेती है, ठीक है, जो भी राइटर है वो, ठीक है। फील्ड माउस आई कैन सी यू पास, तो वहाँ से मैं आपको देख सकती हूँ। देन लिटिल थिंग इन व्हाट डार्क डैन, कि तुम इतनी छोटी सी हो, तुम एक इस अंधेरे वाली डैन गुफा में, लाई यू ऑल द विंटर स्लीपिंग, तुम पूरी अपनी जो विंटर है मीन्स जो ठंड का मौसम है वो तुम कहाँ पे गुजारती हो, उसी जैन में, ओके। टिल वार्म वेदर कम्स अगेन, कि तब तक तुम अपना वहाँ पे रेस्ट करती हो, पड़ी रहती हो, सोती रहती हो, कहाँ पे, अपनी जैन में, डार्क जैन में, जब तक कि वहाँ पे गर्मी ना आ जाए, ठीक है, वहाँ पे गर्मी का मौसम ना आ जाए। देन वंस मोर आई सी यू पीपिंग, और जैसे ही गर्मी का सीजन आता है, समर सीजन आता है, वैसे ही मैं तुम्हें फिर से देखने लगती हूँ, ठीक है। राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स, तो कहाँ पे तुम्हें देखती रहो कि कभी तुम वहाँ झांक रहे हो, कभी वहाँ झांक रहे हो, ठीक है। देन वंस मोर आई सी यू पीपिंग राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स, तो कहाँ पे कि जो टॉल ट्री की रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उसी के आसपास तुम चक्कर लगाते रहते हो। निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट्स, और उन उसके पेड़ के जो भी फॉलन फ्रूट्स हैं मीन्स जो पेड़ के फ्रूट्स जो भी नीचे गिरे हुए हैं उनको तुम निबल करते रहते हो। निबल मीन्स ईट, खाना, ठीक है, छोटा छोटा कतरा कतरा करके जो चूहा जिस तरीके से खाता है ना, तो उसको बोलते हैं निबलिंग, ठीक है, खुतर खुतर के एक्चुअली, ठीक है। निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट्स, उसे बोला जाता है निबलिंग, जो हम खुतर खुतर के खाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट्स। मीन्स जो भी फॉलन फ्रूट्स हैं, जो पेड़ से नीचे गिरे हुए हैं फ्रूट्स, जो फल हैं जो भी गिरे हुए हैं, उनको तुम कुतर कुतर के खाते हो। फील्ड माउस डू नॉट गो, अब वो क्या कह रहे हैं, द पोइट जस्ट वांट टू से इज, जो पोइट है वॉन्ट्स द फील्ड माउस, कि द पोइट वॉन्ट्स द फील्ड माउस नॉट टू गो, कि वहाँ मत जाओ, वेयर द फार्मर स्टैक्स हिज ट्रेजर, जहाँ पे फार्मर ने अपना, स्टैक्स हिज ट्रेजर मीन्स अपना
खजाना इकट्ठा किया हुआ। खजाना एक फार्मर के लिए क्या है, उसका जो ग्रेन है, ठीक है। तो जो उसने वहां पे इकट्ठा किया हुआ है वहां पर प्लीज तुम मत जाओ, ठीक है। तो Texas treasure the granaries and the stacks of grain. तो प्लीज वहां पर तुम बिल्कुल मत जाओ। फाइंड द नट दैट फॉल्स below, और तुम यहीं पर आसपास कहीं कोई नट ढूंढकर खा लो। ईट द अकॉर्न एट योर प्लेजर, और तुम जो अकॉर्न है इतने प्यार से खाते हो, इतने खुशी खुशी खाते हो, वो खा लो तुम। लेकिन बट यू मस्ट नॉट स्टील द ग्रेन, लेकिन तुम्हें ग्रेन नहीं चुराना चाहिए। ही हैज स्टैक्ड विद सो मच पेन, जो उसने इतनी मेहनत से वहां पर इकट्ठा किया है। तो बट यू मस्ट नॉट स्टील द ग्रेन, लेकिन तुम्हें वो ग्रेन जो उसने धान जो भी है, गेहूं चावल जो भी इकट्ठा किया है, उसे तुम्हें नहीं चुराना चाहिए, जो उसने इतनी मेहनत से इतने दर्द से वहां पर इकट्ठा किया है। ऑलराइट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेंजा। व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्टेंजा इज, so the poet wants the field mouse not to go where the farmer stacks his treasure and the granaries and the stacks of grain. The farmer has worked hard for the harvest. जो farmer है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उस harvest के लिए, उस grain के लिए, and is justified in keeping a watch over it. और ये justify मतलब ये चीज़ हमें बताती है कि तो इस क्योंकि उसने उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वो उस चीज़ को बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो उस पर वॉच ओवर करेगा, मतलब उसको उसकी रखवाली करेगा। तो व्हाट शी टेल्स द लिटिल फील्ड माउस टू ईट द अकॉर्न। सो व्हाट द पोएट वांटेड टू से इज कि प्लीज ईट द अकॉर्न्स एंड नट्स अंडर द ट्रीज रादर देन स्टीलिंग द फार्मर्स ग्रेन। कि प्लीज तुम जो अकॉर्न और नट्स यहाँ पे पड़े हैं ट्री के नीचे, प्लीज उन्हें फार्मर वो खा लो तुम, लेकिन प्लीज फार्मर का ग्रेन मत चुराओ। इन एंड नाउ इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट टेल्स द माउस टू मेक इट्स होल। व्हाट लास्ट स्टेंजा में पोएट का कहना चाह रहा है कि वो चाहता है कि जो माउस है वो जो टॉल ओक ट्री होता है उसमें क्या कर ले, उसमें ओक की जो शेडो होती है उसके नीचे एक होल बना ले, अपना एक घर सा बना ले, ठीक है, एक होल बना ले, और प्ले वहाँ पे खेलता रहे। प्ले अबाउट द सनी मेडो, और वहाँ पे जो सनी मेडो है उस मैदान में, खाली मैदान में खेलता रहे। और कीप अवे फ्रॉम कॉर्न एंड हाउस, और जो हाउस घर है और जो कॉर्न है, मतलब जहाँ पे वो ट्रेजर है फार्मर का, ट्रेजर मीन्स जो ग्रेन है फार्मर का, वो उसके लिए तो ट्रेजर ही है, तो वहाँ पर वो वहाँ नहीं जाए, उससे दूर रहे। एंड नन विल हार्म यू लिटिल माउस, और तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वेयर इट विल रिमेन अ प्रिटी क्वाइट हार्मलेस थिंग अवे फ्रॉम कॉर्न एंड हाउस एंड this way so this way the mouse will be prevented from harming the farmer's house and store of grain on the one hand, and on the other none will harm the field mouse either for stealing the grain। तो इससे क्या होगा कि इससे दो चीज़ें हो जाएंगी कि जो फार्मर का ग्रेन है वो भी बच जाएगा, और जो लिटिल माउस की जान है वो भी नहीं जाएगी, मीन्स उसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्लीज तुम जो सिसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर है, जो पोइट है, जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट प्लीज शी वांट टू वार्न हिम दैट प्लीज डोंट गो देयर बिकॉज ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। ही stacks his treasure in the house, so please don't go there, so it will keep you फ्रॉम कॉर्न एंड हाउस, तो नन विल हार्म यू, कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा छोटे चूहे, अगर तुम यहीं रहोगे, यहीं पर ये जो तुम्हारी चीज़ें हैं उसका जो फ्रूट है वो खाओ, नट्स हैं वो खाओ, बेरीज हैं वो खाओ, लेकिन प्लीज डोंट गो देयर इन द फार्मर्स हाउस वेयर द स्टैक्स ऑफ ग्रेन इज देयर। ओके, so this is the meaning of this poem. So now this is the meaning of your poem, The Field Mouse, and this poem is written by Cecil Francis Alexander. And now
I want to tell you the rhyming words of this poem. So first one is down, second one is brown. डाउन का क्या होगा, ब्राउन हो जाएगा राइमिंग वर्ड, बेरी का मेरी, ग्रास का पास. ऑलराइट, सो दीज आर द थ्री राइमिंग वर्ड्स. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. जेन का क्या हो जाएगा, अगेन. स्लीपिंग का पीपिंग, एंड रूट्स fruits. Alright, so three other we get from this. Then next one is treasure. Treasure का हो जाएगा pleasure. Grain का हो जाएगा pain. नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग. स्प्रिंग का हो जाएगा थिंग. शेडो को हो जाएगा मेडो, एंड हाउस का हो जाएगा माउस. ऑलराइट, सो दीज आर द राइमिंग वर्ड्स you have to write. Or if you want to take this, do not go or false below. Okay, so these are also the rhyming words. Okay, so these rhyming words you have to write means 3 from here, 3 from here, 6, and means 12. 12 rhyming words are there, so you have to write down in your notebook those rhyming words in a very good handwriting. And first of all, you will write on the top of the page is the field mouse, the title of the poem, and then you will write the first and second stanza of the poem, and after that you will write the name of the poet, Cecil Francis Alexander. All right. So after that, you will write the rhyming words of the poem which I have given you. So you will write the rhyming words. Okay, so your homework is that you have to write the poem, and after that you have to write the rhyming words on the other page. Okay, then these are the word meanings from the poem given here. So you have to complete these word meanings in your notebook. There are only 4 or 5 word meanings are there. 5 word meanings are there. So you have to complete them in your notebook. And one more exercise we have to do today is only in your book only. You have to do this exercise. This exercise, which is on page number 39, you have to complete. Give antonyms of the following words used in the poem. So what you have to give is you have to give the antonyms of the following words used in the poem. Okay, तो ये सारे words हैं जो poem में दिए गए हैं और आपको इनके antonyms लिखने हैं. तो down का you can write easily up. Second one is soft, so soft का क्या हो जाएगा, hard. And third one is merry. Merry means happiness, so उसका हम कर सकते हैं sad. Dark का it's very easy, light you can write. Fallen means नीचे गिरना, means rising, ऊपर उठना. ठीक है, rising. Pleasure means खुशी, means pleasure का आप लोग लिख सकते हो pain, दर्द. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सेवेंथ, pretty. Pretty means beautiful, means उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, ugly. देन quiet means जो शांत होता है उसे हम क्वाइट बोलते हैं. क्वाइट का हो जाएगा नॉइजी. एंड नेक्स्ट वन इज हार्मलेस. हार्मलेस मीन्स जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है उसे हम बोलते हैं हार्मलेस. तो इसका हो जाएगा हार्मफुल, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल. नेक्स्ट वन इज हार्म. हार्म मीन्स नुकसान, मीन्स गुड. ओके, जिससे हमें नुकसान नहीं पहुंचा, गुड, दैट इज गुड. ओके, so these are the antonyms of the following words used in the poem. So you have to write this, and tomorrow I will give you the question and answers. Okay, so tomorrow I will give you answer these following questions. There are some questions given, so I'll give you this exercise tomorrow, and you have to write down. And tomorrow I will just state these answers, so please take your pencil in your hand and do these exercise. Okay, so there are so many questions given here, so we will just do this exercise. Read the following line from the poem. There is one line given in the poem: he has stacked with so much pain. This line is given in this, so you have to answer the question. So what is the first question is, who is implied by he? So who is implied by he? He यहाँ पर किसको बोला गया है, मैंने जैसा कि आपको समझाया, he has stacked with so much pain. कि उसने वो इकट्ठा किया है बहुत ही दर्द के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ, दर्द नहीं कहेंगे, बहुत हार्ड वर्क किया है उसने उसको इकट्ठा करने में. तो उसके लिए who is implied by he means he is implied to the
farmer. Okay, so next one is what has been stacked. What has been stacked कि वहाँ पे क्या stack किया गया है. So he has stacked grain and corn. What? He has been stacked. He has stacked grain and corn. जो उसने मक्का है और जो धान है, जो भी grain है, वो इकट्ठा किया हुआ है. ठीक है. Does the poet sympathize with the person referred to here or why? क्या जो पोइट है वो उस पर्सन से सिंपथाइज है, मतलब क्या उसे दया आ रही है उस पर्सन के लिए जो यहाँ पर रेफर किया गया है ही से, तो क्यों दया आ रही है उसे. ठीक है. तो दैट यू हैव टू राइट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द पोइट सिंपथाइजेस विद द फार्मर एंड रिस्पेक्ट व्हाट कि वो सिंपथाइज है फार्मर से और रिस्पेक्ट करता है इस फैक्ट का कि ही हैज कलेक्टेड हिज ट्रेजर विद सो मच पेन कि उसने जो वो ट्रेजर अपना धन इकट्ठा किया है. धन मीन्स मैंने आपको बताया जो उसका ट्रेजर है वो धन ही है उसके लिए, एक फार्मर के लिए जो उसने ग्रेन इकट्ठा किया है, जो कॉर्न इकट्ठा किया है वो. ठीक है. सो ही कलेक्टेड हिज ट्रेजर विद सो मच पेन. सॉरी. At the same time he sympathizes with the little field mouse also. तो वो at the same time वो जो field mouse है उसको भी क्या करता है, sympathize, उसके साथ भी उसकी sympathy है little field mouse के साथ, who has hibernated all winter, कि जो सर्दियों में सिर्फ सोता रहता है लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आती हैं वो अपने आप अपने आप के लिए क्या जो फार्मर का स्टैक है वहाँ से ग्रेन को स्टील करने की कोशिश करता है. So these are the answers of your ninth question. These are the answers. Now move on to the next topic is which is I just want to say is if you don't understand anything, please if you have any query you can ask me on WhatsApp class group. So I will answer your query. So that is for today. Thank you and we will continue tomorrow. Okay, bye.